ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੈਂ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੈਂ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ, ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਉ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਹੁਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਲ ਦਿਖਾਏ ਚਾਹਤ ਬਿਦਤਾਵਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਨਹਤੇ ਸ਼ਿਨ ਬਿਦਤਾਵਾ। ਬ੍ਰਿਸ਼ ਸਿੰਸਪਾ ਤੇ ਥਲ ਜਾਨਾ। ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਕਰ ਉਦਮ ਠਾਨਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋਂ ਜੋਗਾ ਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਲ ਦਿਖਾਏ ਚਾਹਤ ਬਿਦਤਾਵਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਨਹਿ ਤਿਹ ਛਿਨ ਬਿਦਤਾਵਾ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਟਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਦਿਖਾਏ ਚਾਹਤ ਬਿਦਤਾਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਨਹਿ ਤਿਹ ਛਿਨ ਬਿਦਤਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖ ਲਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਸਿੰਸਪਾ ਤੇ ਥਲ ਜਾਨਾ। ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਕਰ ਉਦਮ ਠਾਨਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੀ ਬੇਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘਾ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੱਡਾ ਦਿਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪਟਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਥਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੋਖਸਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਟਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਟਵਾਈ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖਸਰ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਹਨੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
यही धन गुरु अर्जन देव जी चाहते हैं। हुण टाले वाली थान देखी जिथे अज संतोखसर साहब है, उस थान नूं उत्थे जाके उस सरोवर दी निशानियां लाइयां। निश्चय तिस तीर्थ को करियो, सबन संग सतगुरु उचरियो। कहते वो टाले की निशानी तो निश्चय कर लिया पक्का कि ये उही तीर्थ है जिहड़ा संतोखसर है। और गुरु साहब जी ने फिर पावन बचन सारी सिख संगतां नूं कहे, गुर आग्या ते पिता हमारे, आए सो सार करवाए सकारे। धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, भाई सिखो साडे पिता धन गुरु रामदास महाराज जी ने गुरु जी की, धन गुरु अमरदास जी की आग्ञा लैके इत्थे आए सन। इस संतोखसर सरोवर की सेवा उन्होंने अपने हथी करवाई नूं पटवाया सी। यह तो बिदत चिन्ह लख पयत, खन्यो कित क्यार तर दृष्टायत। हुण सतगुरु जी बिल्कुल सिखां दे विच इस वेले इस तरह विचर रहे हैं कि सानू कुछ नहीं पता, किसी निशानियां देखिया ने। देखो कहते यह तो बिदत चिन्ह लख पयत, यह निशानियां ने कुछ पुट्टिया होया भी, ये तो निशानियां प्रगट ने दिख रही ने। ये गुरु साहब जी ने कुछ खुदवाया सी पटवाया सी, ये नज़र आ रहा है। इम सुन सब नय किह निस निर्णय, आप जथारथ करहो बरनय। ये सुन के तो सारा कुछ वेख के सारे ने गल निर्णय कर लिया पक्का। तो भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा साहब जी होर सिख कहते हैं, सतगुरु जी आप जी के बचन बिल्कुल सत्य ने, क्योंकि निशानियां नज़र आ रही ने, पुट्टिया होया नज़र आ रहा है। टोवा खड़ियो सो परे दिखाई, तुम ते कौन लखे अधिकाई। सतगुरु जी आप तो वध कौन जान सकता है, इत्थे तो फिर भी टोया पट्टिया होया नज़र आ रहा है। इम निश्चय कर लगे खनावण, गण मजूर सिख करे लगावण। कहते इस तरह जो निर्णय हो गया, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, गुरु अंगद देव महाराज जी, धन गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास महाराज जी के चरणों में अरदास बेनती की कि यही थां है, निशानियां पक्कियां कर लियां। बहुत सारे सिखां नूं कह दिता कि भाई जिथों जिथों जिन्ने मजदूर मिलते हैं दिहाड़ी करने वाले, वो मजदूर भी लैके आओ। ਜਿਹੜੇ सिख निष्काम होकर सेवा करना चाहते हैं वो भी अपने अपने घरों विचों समा कढ़ के जिन्ना समा लगे आके सेवा करो। बृंद खनहे सिर मृतका तारे, लेकर वहर जाए तट डारे। अगले दिन सरोवर की जी पुटाई शुरू कर दी गई कि अनेक जाने जोड़े ने वो कई लैके पटते हैं, और बहुत सारे ने जोड़े टोकरे भर भर के सिरों के उत्ते रख के बाहर लैके जाते हैं। लेकर वहर जाए तट डारे, कई टोकरे भर भर के सिरों ते सिर्फ चुकाते हैं, कई चुक चुक के बाहर जाके सरोवर के कंढे तो बार बार दूर करके मिट्टी में सुटते हैं। अनगन मानव आवण लागे, किते मजूर सिक्ख्या बड़ भागे। शुरू दे विच भावें सिख थोड़े सन, मजदूर भी थोड़े सन, पर जिवें जिवें सेवा कार सेवा का पता लग्या, बहुत सारे सिख भी तो बहुत सारे मजदूर भी जिन्होंने पता लगता कि उत्थे लंबे समय तक लंबी दिहाड़ी मिलेगी, वो भी आते हैं। और भावें कोई मजदूर से भावें कोई सेवा करने वाले सन, सारे दे वड्डे भाग सन कि एडे वड्डे सरोवर की, एडे वड्डे तीर्थ की उन्होंने सेवा करनी है। हिम दिन प्रत श्री अर्जन नाथ, लेकर सिख संगत को साथ। कहते इस तरह दिन प्रतिदिन हर रोज़ धन गुरु अर्जन देव महाराज जी सिखां नूं संगतां नूं नाल लैके जह कहते बहु करे बुलावण, गन मजूर जुत करत खनावण। जिथों कितों सिखां नूं भी बुलाया, जिथों जिथों मजदूर मिले, दूर दूर के पिंडां तक सने भेजे कि भाई जी ने दिहाड़ी करनी है, मजदूरी करनी है, वो भी आओ। बैठे जाए ताहे के तीर, खोदे बहु मानव के भीर। गुरु साहब जी सरोवर के कंढे ते बैठते हैं,
बहुत सारे सिखां दी मजदूरां दी जिहड़ी भीड़ है वो इस सरोवर नूं पट रही है। एक खननी गहै गणेश थल थल, एक निकासे भाखे चल चल। कहते कई कईयां लैके सिर्फ अगों पुटदे ने, मिट्टी पुटदे ने। कई जड़े ने पिछे कईयां लैके वो टोकरे भरदे ने, और कई जड़े ने वो सिर्फ चुकाउंदे ने ते नाले हल्लाशेरी दिंदे ने, चलो भाई चलो 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 कह के सतनाम वाहिगुरू जपदे होया इस तरह सेवा चलती है। तरे भावना के तके आवे, तीरथ खने तथा फल पावे। कई मन दे विच शरधा लैके भावना लैके आउंदे ने कि असल विच कोई तलाब नहीं, ये सिर्फ सरोवर नहीं, एक बड़ा वड्डा तीर्थ है। सेवा करांगे तो बहुत सारा फल मिलेगा। केतक सिख आप चले आए, केतक श्री अर्जन बुलवाए। कई सिख अपने आप आए और कई सिख पिंडां दे विच गुरु साहब ने सुनेहा भेज के, क्योंकि बहुत सारे 22 मंजियां गुरु साहब ने स्थापित कीतियां सन, प्रचारक सन। उन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ गुरु साहब ने सुनेहा भेज के सिखां नूं आप बुलवाया भी। भई जहाँ कह पसरे गाथा, सुन सुन आए ना पाए माथा। कहते ने जिथे किथे ये गल ये गाथा फैल गई कि वड्डी कार सेवा चली है, सरोवर तैयार हो रहा है। ये सुन सुन के बहुत सारे आए, नाए पद माथा। आके सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों विच मत्था टेकते ने। महा चौप ते कार निकारे, सिमरे नाम बिगन को टारै। ते सिख आके ये नहीं कि बद्धा रुधी, कहते बड़े चाह दे नाल भज भज के नाले मिट्टी पटते ने, मिट्टी कढ़ते ने, ते नाले सिमरे नाम बिगन को टारे। सतनाम वाहिगुरू दा नाम जपते ने कि जेड़े सारे बिगड़ां नूं नाश करने वाला है। को आवत को जात अनेक, को सेवा कर लहे विवेक। क्योंकि कोई आउंदा है कोई जाता है, कोई महीना महीना कई कई दिन रह के सेवा करता है, कई नेड़े वाले रोज आउंदे ने सेवा करते हैं। और को सेवा कर लहे विवेक। कईयां दी भावना सिर्फ इन्नी है कि सेवा करनी है, सतगुरु जी समत बख्शियो। विवेक बुद्ध लैण वास्ते सेवा करते हैं। को जग सुख को बंच ते आवे, सुत पित आदिक सो तिह भावै। क्योंकि हर किसी की बिरती हर किसी की मंग इको जी नहीं। को जग सुख को बंश ते आवे, कई कामना लैके आउंदे ने कि जगत के सुख मिल जाना, रुपया पैसा धन पदार्थ मिले। सुत पित आदिक सो तह पावे, कई आस लैके आउंदे ने पुत्र की दात मिल जाए, बित अर्थ आर्थिक दशा चंगी हो जाए, रुपया पैसा आ जाए। और जिवें दी भी कामना कोई लैके आउंदा है उवें दी सतगुरु जी उन्हां दी मनोकामनावां पूरीआं करदे ने। प्रात होतले संग सबन को, सगरे दिन मह करे खनन को। धन गुरु अर्जन देव जी हर रोज़ सवेर हुंदिआं नाल ही जदों ही आसा किवार दा भोग पैंदा है, सारे सिखां नूं नाल लैके फिर सारा दिन इस सरोवर दी पटवाई चलदी है। संध्या होत जात बिच ग्राम, बने देग बड़ गुर के धाम। शाम नूं नगर दे विच आउंदे ने और वड्डे देग तैयार हुंदी। आसा कि वार रात नूं सोधर दी चौंकी तो बाद वो वड्डी देग भाव के लंगर तैयार हुंदा, जिंदे च कड़ा प्रसाद भी हुंदा है। सगरे संगत पाए आहारे, तहाँ जामनी बसे सारे। सारी संगत देग दे विचों लंगर छकदी है और रात नूं उत्थे सुख दे नाल आराम करके सौ के रात बतीत करते हैं। होत भौर सब क्रिया सुधार, करे जाए तीर्थ के कार। सवेर हुंदिआं नाल फिर उस तरह सारे अमृत वेले उठ के सोच इशनान करते हैं, कुछ छक छका के फिर जाके सरोवर की कार सेवा विच लगते हैं। इस प्रकार केतक दिन करे, खड़े मृत का वाहर गिरे। इस तरह कई दिन हो गए लगातार पुटाई होंदी है, मिट्टी पुटते ने बाहर सुटते हैं।
ਬਹੁ ਗੰਭੀਰ ਕਰਿਓ ਬਰਤਾਲ, ਕਹਿ ਕਰਵਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਿਸਾਲ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਪੱਟੋ। ਬਹੁ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਹੋਈ ਭੀਰ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਹਿਮਾ ਆਵੇਂ ਤੇਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਤ ਕੇ ਅੰਨ ਪੁੰਜ ਕੋ ਆਨੇ, ਪਾਏ ਦੇਗ ਮਹਿ ਸਰਦਾ ਠਾਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੋਂ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਧਨ ਕੋ ਆਹਣ ਚੜਾਵੇਂ, ਦੇਤ ਮਜੂਰਨ ਤਾਲ ਖਨਾਵਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ 2-4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਆਪ ਆਏ ਤਹਿ ਰਹੇ, ਕਰੇ ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਮ ਚਹਿ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਘਰ ਤੇ ਅੰਨ ਸੁਆਨੇ, ਆਪਣੋ ਖਾਏ ਕਾਰ ਕੋ ਠਾਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਖਾਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਡੱਬਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਟਿਫਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੁੰਨੀ 'ਚ ਪੂਣੇ 'ਚ 4 ਫੁਲਕੇ ਬੰਨੇ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਛਕਣਾ। ਕਿਤਕ ਦੇਖ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਏ, ਸਭ ਦਿਨ ਸਰ ਕੇ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰਹੇ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਕੋਸ ਕਾਮ ਠਾਨੇ ਅਰਦਾਸ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਵੱਡਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਭੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਉਹ ਹੈ। ਕਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਧੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਦ ਕਾਜ ਸਾਰੇ ਕਰਬੇ ਕੇਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਨ ਲਖੇ ਬਡੇਰਾ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬਰਖ ਮਹਿ ਹੋਵਣ ਹਾਰਾ, ਪਾਕੇ ਈਟਾ ਚਲ ਹੈ ਕਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ ਜਾਂ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੱਟੀ ਜਾਏ ਰੋਜ਼।
फिर पौड़ियाँ बनाउणियां ने, इट्टां दे आवे लगने ने, बड़ा वड्डा कार्ज है। और सरोवर कला ही नहीं, उस तो बाद अमृत सरोवर भी बनना है। अणक पजावे लागै जबै, तब कारज बन सकैं सबै। क्योंकि समा लगना जदों इट्टां दे अनेकां ही बहुत सारे आवे लगणगे, बहुत सारिया इट्टां बनगियां, तो फिर कारज किते सिर ने चढ़ना जदों पौड़ियां पक्खियां होणगियां। बृंद कुलाल बसे जब आए, लाए पजावे लेह पकाई। कुलाल कहंदे ने घुमियार, इट्टां पकाउण वाले, कि सैकड़ियां की गिनती में घुमियार होणगे, इट्टां थप्पणगे, इट्टां पकाउणगे। सर्व प्रकार चितवें चित माही, जिम तड़ाग तूरण होए जाही। इस तरह गुरु साहब जी सारिया विचारां मन दे विच करदे भी ने कि समा लगना है, पर फिर भी छेती कह के सरोवर की सेवा जिहड़ी है ना, गुरु साहब जी छेती तो छेती चाहुंदे ने कि छेती तैयार होवे। श्री गुर अमरदास की आयस, पिता हमारे को फुरमाए। गुरु साहब जी अपने नाल विचारा करते हैं मन विच कि साडे पिता धन गुरु रामदास जी नूं नाना गुरु धन गुरु अमरदास जी का हुक्म सी कि ताल करो चौकोण विसाल, होए पाको ईटण लग जाल। कि सरोवर बनाउणा है तो फिर चारे पासों पौड़ियां जिहड़ियां ने वो पक्खियां करनियां ने, चंगी तरह उनके चार पासे जिहड़ियां परिक्रमा ने इट्टां ला ला के उन्हां सारिआं नूं पक्का करना है। तथा पिता ने मोको कहियो, टहल ताल के मह चित चहियो। ते जिवें गुरु पिता नूं नाना गुरु धन गुरु अमरदास जी का हुक्म होया सी, उवें धन गुरु रामदास जी ने गुरु पिता ने सानूं हुक्म कीता है। इस करके असीं चाहुंदे कि ये सेवा जिहड़ी है पूरी चित ला के सिख भी भावना के नाल करन ते असीं भी आप खलो के सेवा कराइए। सर्व प्रकार जे यह बन जाए, गुर दोनों के पूरे रजाए। क्योंकि सारे तरह के नाल जे सरोवर पक्का बन जाए, दोवें सरोवर पक्के बन जाण ते दोवां गुरु साहिबानां दी रजा नूं असीं जिहड़ी है उन्हां दी खुशी नूं पूरी करांगे, उन्हां दी खुशी लवांगे। दोवें गुरु साहिब धन गुरु अमरदास जी ते गुरु रामदास जी। सिमर सिमर बच पूरब गुर के, सब कारज करवावे सर के। इस तरह धन गुरु अर्जन देव जी गुरु साहिबां दे बचनां नूं सिमर सिमर के चेते कर करके ये कार सेवा कह कह के नाम जपा जपा के करवा रहे ने। बैठे तट पर कहे खनावे, सिखण को उपदेश दृढ़ावे। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी किनारे ते बैठते हैं और विचों विचों आवाज़ दे के कहते ने, सावा सिखो चलते रहो। सारा दिन बैठ के नाम जपाते हैं, गुरु के सिखा नूं उपदेश देंदे ने। सब गुर करहे काम ना पूरे, बिच परलोक लहो गत रूरे। और गुरु साहब जी विचों विचों उपदेश देंदे ने, भाई सिखो चलो, करते रहो सेवा, लगे रहो। गुरु साहब जी तुहाडी सारी कामना पूरी करनगे, केवल इत्थे नहीं, बिच परलोक लहो गत रूरी। गुरु साहब जी परलोक दे विच भी तुहाडी बांह फड़नगे। बीते केतक मास खनावत, सर सेवा को अधिक जनावत। इस तरह पुटाई करदे करदे कई महीने लंघे जी। सर सेवा को अधिक जनावत, क्योंकि सेवा जिहड़ी जोरदार है और जिवें जिवें सरोवर डूंगा हुंदा काम उवें होर ज़्यादा वधदा है। उतों तो पुट के सुटनी, फिर थल्लों पुट के उतों तक लियाउणी। नित प्रतकार अधिक ही होए, कर जित चौंप खने सब कोई। कई महीने लंघे पुटाई करदे नूं, और जिवें जिवें पुटाई हुंदी है, ये नहीं कि कई महीने हो गए तो सिख अक गए होण, थक गए होण। सिखां दे अंदर सगों चाह पैदा हुंदा कि बस हुण सेवा पूरी होण वाली है, हुण थल्लों जल आउण वाला है। बड़ गंभीर भयो तब खणते, बृंद गिरावे मृतका अणते। बस जिवें जिवें सरोवर डूंगा हुंदा उवें सिखां दे अंदर होर चाह चढ़दा है। मिट्टी पुट पुट के बाहर सुटते हैं, नाले एक दूजे नूं हल्लाशेरी दिंदे ने, चलो भाई
जब खण के नमरी बहु करियो, व्रत ला कृत मठ जानियो परियो। कहते जदों सरोवर की पटाई बहुत डूंगी होगी और थले डूंगा जाके जदों सिखा ने कई मारी तो थल्लो एक मठ निकलिया है। मठ आप जी जानते हो जोगियों के मठ होंगे ने और गोल जे बड़े होंगे ने, कई थावां ते अज भी नज़र आ जाते हैं कि जिंदे विच आम तौर पर जोगी बैठते सन। सब लोगन को तहाँ लगाए, दौर दौर गुर पास उचारे। एक मठ निकस्यो लोक निहारे, कई सिख दौड़ के धन गुरु अर्जन देव जी के कोल आए ते आके कहते ने सतगुरु जी सरोवर विच थल्ले एक मठ है। मठ उस तरह का बनया, लोग वेख रहे ने। सुनकर उठे आप जग स्वामी, गए निकट तिसे अंतरजामी। धन गुरु अर्जन देव जी अंतरजामी ने, सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी जिवें सिखा ने दसिया, गुरु साहब जी सिखा के दर्शन करके उठ के आप चल के गए। सब लोगों को तहाँ लगाए, करो निरालम चौह दिस थाए। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बहुत सारे सिखा उस मठ के 4 सफेरे लाया कि भाई मठ के 4 सफेरों मिट्टी कढ़ो, जगह खाली करो। तार पर शिला लगे खुलवाई, देखो मुनि समाध लगाई। 4 पासों मिट्टी हटा दी गई, मठ पूरी तरह बाहर निकलिया और मठ का कोई दरवाजा बंद सी ते दरवाजे में फटियां दे नहीं सन। कहते अगे एक शिला वड्डा सारा पत्थर लग्या हुआ सी, पत्थर के नाल दरवाजा बंद सी। हुण गुरु साहब जी कहते भाई इस दरवाजे नूं जां इस शिला नूं पत्थर नूं हटाओ। पत्थर हटाया तो विच के देखे कि मुनि बैठा है और समाधि लगा के बैठा हुआ है। कस्तूरे श्री गुरु मंगवाई, ले नवनीत है साथ मिलाई। धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं भाई सिखो थोड़ी जी कस्तूरी लैके आओ, कुछ मक्खन लैके आओ। कस्तूरी ते मक्खन नूं आपस में मिला दिता। चरण साथ दुआए सिख लगाए, सने सने तिन ते मिलवाए। कहते उस मठ दे विचों उस शरीर नूं है तो एक बोती सी, विच सवास नहीं सन चलते। जिथे चौंकड़ा वड्डिया सी उस तरह चौंकड़ा वड्डिया, हथ पैर हिलते नहीं सन। धन गुरु अर्जन देव जी ने सिखा नूं कहा कि पहलों तो मठ दे विचों बाहर कढवाया। सतगुरु कहते हैं भाई 2 सिख लगो, तलियां नूं चसो, पैरों दी तलियां चसते ने। 10वें द्वार को पुने कसावा, तिस ते तन मह उसनूं पावा। क्योंकि जिहड़ी कस्तूरी ते मक्खन मिलाया है ना, उनकी मालिश करवाते हैं पैरों दी तलियां च, हथों दी तलियां च। और गुरु साहब जी कहते हैं 10वें द्वार को पुने कसावा, भी ये जड़ा मक्खन है ये कस्तूरी है तो 10वें द्वार च घसाओ। 10वें द्वार जिन्हों आप तालू कह दें, सिर दे ते चोटी ते इनू उत्तों चसाओ, चंगी तरह मलो, शरीर दे विच गरमैश आवे। रोक पाउण लग रही समाद, सर्ब भांत के साधन साध। क्योंकि इस मुनि ने साधना बड़े तरीकों के नाल कीती है। रोक पाउण, हवा नूं रोकिया होया है, भाव के प्राणा नूं रोक के समाधि ला के बैठा होया है। चेतनता तन मह होए आई, बैठे बरख बिते समुदाई। जिवें जिवें गुरु साहब जी कृपा करते हैं उनकी मालिश हो रही है, सिर दे विच मक्खन कस्तूरी चलते हैं। जिवें जिवें गर्मी आई उवें शरीर दे विच थोड़ी जी चेतनता आई, शरीर हिलना शुरू होया। क्योंकि ये मुनि कोई 1 2 4 10 20 50 साल का नहीं बैठा। बैठे बरख बीते समुदाय, पता ही नहीं किन्ने कुछ साल बीत गए ने, युग बीत गए ने। राख्यो रोक सो 10वें द्वारा, सने सने सो पौन उतारा। ये पौन, पौन का अर्थ हवा, श्वास। इस मुनि ने अपने श्वास कहते ने 10वें द्वार दे विच रोक के रखे। जिवें जिवें मलिया
उवें ने अपने श्वास जिहड़े ने हौली हौली करके शरीर दे विच उतारे। तूल आदते अणक उपाए, तेह शरीर को भले बचाए। सतगुरु जी ने बहुत सारी रूह भी मंगवाई, क्योंकि शरीर एक तरह का पूरी तरह गलिया ही पिया सी। रूह दे नाल चंगी तरह ढक के भली तरह जिवें उपचार हो सकता सी, क्योंकि शरीर का अपना धर्म है ना जी। देखो कोई लाश पई होवे, शाम तक ना कढ़िए तो सवेर तक बो मार जाती है, और लाश नूं तो छड्डो, जिउंदा जागदा बंदा जे किते 2-4 दिन नहावे ना तो उहदे विचों बो आउण लग जाती है, लोग नेड़े नहीं लगते, और इन्हूं तो पता ही नहीं समा किन्ना हो गया है। और सतगुरु जी ने कृपा की, हौली हौली रूह दे नाल किते मक्खण शरीर ते लाउंदे ने, जो कुछ उपचार चाहिए सी सारा किया। होते गोसता सब ही करकै, सणै सणै तन के सुध धर कै। होते योगता सब ही करकै, कि जिवें जिवें जिहड़ी योगता सी शरीर नूं संभालण वास्ते गुरु साहब जी ने सारे किया। हौली हौली करके शरीर नूं संभिया। दोनों लोचन जबै उघारे, श्री गुरु अर्जन समुख निहारे। कहते हौली हौली फिर इस जोगी ने, इस मुनि ने अपनी अखां खुलीआं, तो जदों अखां खोलदा सामने वेखदा धन गुरु अर्जन देव जी ने। सणै सणै मुख जिहव चलायव, शुद्ध आत्मा मृदल हलायव। हौली हौली इन्हें अपने बुल खुले, हौली हौली जीभ चलाउण दा यतन किया कि कुछ बोला। अंदर आत्मा दे हौली हौली शुद्ध यतन दा करदा यतन कि किवें शुद्ध होवे। कौन नाम इन देहो सुनाई, कहते प्राप्त भई बढ़ाई। कहंदा हौली हौली जदों ने मूँह खोलिया, जबान हिलाई, तो ये बोलता है। धन गुरु अर्जन देव जी सामने बैठे ने कि भाई इन्हां दा नाम दसो की है, कि एडे वड्डे इन्हां नूं ये जिहड़ी वडियाई मिली है, ये सारा कुछ वेख के पता लगता बहुत वड्डा प्रताप है भी ये कौन ने। किसके यह नंदन सब कहो, समा कौन अब जग में हो। ये मुनि कहंदा कि ये पुत्र किंदे ने, मैनू सब चंगी तरह दसो कि हुण समा किहड़ा चलदा है, युग किहड़ा चलदा है। जब मोहे सब हुए है सखियात, और बुझहूँ पुन बखियात। जदों मैनू ये सारा कुछ तुसी दसोगे ये कौन ने, इन्हां दा नां की है, किन्हां दे पुत्र ने, हुण ये समा किहड़ा चलदा है। ते कहंदे हौली हौली मैनू समझ आएगी, फिर मैं अगे तुहानूं होर सवाल पुछांगा। तब बुढ़े कर जोर बखाना, सोडे बंस शुभ सिंध समाना। कहंदे फिर बाबा बुढ़ा साहिब जी ने मिठी आवाज़ दे विच हथ जोड़ते हुए धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का पूरा जिहड़े कहंदे ने जान पछाण दसी। और जिवें बाबा बुढ़ा साहिब जी दसदे ने उहदे विच जिन्नी सिफत हो सकदी धन गुरु अर्जन देव जी की, गुरु साहिबानां दी, वो बाबा बुढ़ा साहिब जी पूरी सिफत दे नाल फिर धन गुरु अर्जन देव जी का नाम जिवें दसणगे वो आपां कल विचारांगे। होईआं भुल्लां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहे